आफ्टर द रेस्ट मैं दोबारा प्लोसार रेवोल्यूसी स्टेशन पहुंच गया टू स्टार्ट माय सेकंड टूर ऑफ द डे। अगेन आफ्टर अ स्मॉल मीट एंड ग्रीट विद द ट्रैवल ग्रुप हम निकल गए हिस्टोरिकल सेंटर टूर पे। और ये टूर के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि इसमें मैं देखने वाला था रेड स्क्वायर, सेंट बेसिल्स कैथेड्रल, क्रेमलिन एंड गम डिपार्टमेंट स्टोर। So, hello and welcome back to the channel. Hope you all must be doing fine. Before starting with the tour, let's start with the Russian currency. Russian currency can be withdrawn from any ATM in Russia. और ATMs are all over the place in big cities. और मैं big cities से कुछ कैश विड्रॉ कर लिया ताकि आगे आने वाले स्मॉलर सिटीज में मुझे कोई दिक्कत ना हो। करेंसी ऑफ रशिया कम्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 200 and 2000 rubles. The coins in 1, 2, 5, 10 rubles. Back to the tour. After meet and greet, we started towards historical and famous change of guard ceremony at Tomb of Unknown Soldier. ये मेमोरियल वर्ल्ड वॉर 2 में शहीद हुए रशियन सोल्जर्स के याद में बना था। The reason eternal flame guarded by 2 soldiers और हर 1 घंटे में चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी होती है। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ आपको इस टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर के बारे में। यहाँ गार्ड्स सुबह 8 से शाम 8 बजे तक प्रेजेंट होते हैं। हर 1 घंटे बाद गार्ड्स चेंज होते हैं। इन गार्ड्स का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होता है, यहाँ तक कि ये अपने नाक तक नहीं खुजा सकते। हाँ, पलकें जरूर झपका सकते हैं। उनके पीछे जो ग्लास आर्चेस बनी हुई हैं, उसमें हीटिंग सिस्टम भी होती है। ये उन्हें रसिया की जबरदस्त ठंड और बारिश से बचाती है। एक थर्ड गार्ड उन्हें दूर से देखता रहता है और उन पे नजर रखता है। फॉर एनी इमरजेंसी अगर आप बिना इजाजत आगे टॉम की ओर बढ़ेंगे तो वो सीटी मारेगा और आपको रोक लेगा। बट इफ यू हैव फ्लावर्स और आप इसे टॉम पे रखना चाहते हैं तो आप इनकी इजाजत से ये कर सकते हैं। सेरेमोनियल गार्ड डिवीजन इज कंसिडर्ड टू बी ए ग्रेट ऑनर। बहुत ही इज्जत की नौकरी मानी जाती है इसे। इन गार्ड्स में बहुत सारे ट्विंस हैं और सारे गार्ड्स करीब करीब सेम हाइट के होते हैं ताकि उनमें बेटर सिंक्रोनाइजेशन हो। तो इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बाद आइए देखते हैं ये वीडियो क्लिप जिसमें मेरी गाइड कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं। Like some face features and yeah, it's an honor to be part of this president regiment. Sometimes they have small talk, you can tell. Or at least like, could you itch my nose, guy? Bro, it's itching. I can do anything about it. Oh, the funny thing that no one will ever notice that he's like 5 millimeters left than he should be. No one would ever notice any wrinkle, like anything, but they still do it. It's important. I don't know. These guys, President Regiment, the soldiers, they are in charge of Kremlin, in charge of everything that is going in the Kremlin, around the Kremlin, entrance to Kremlin, this ceremony. They are in the mausoleum. We will see mausoleum with the red square. So all on them. You will see them in the Kremlin if you will visit. Security, that Kremlin, so on that. Okay. Yeah. By the way, if you for some reason maybe I don't know if you want to go closer to the memorial itself, there is one way how you can get there. If you stand here in the middle, like right in the middle next to the middle chain with the flowers. If you come closer, you have flowers, and this guy will come here downstairs, and he will open the chain for you. You can bring the flowers and go back. Yeah, that's how these flowers appeared there some time ago. Just in case you want. Okay, what else about the memorial? Oh yeah, pretty much described. Can you guess where these soldiers live during their service? Is here, when they are in the army? Kremlin! They live in the Kremlin, like right inside. Lucky young guys, right? Yeah, this yellow building in the Kremlin. So we are now standing next to Kremlin. टूम्ब ऑफ अननोन सोल्जर के एंड सामने है ऑख्तन रियाद।
ये एक अंडरग्राउंड सुपरमार्केट एंड मेट्रो स्टेशन भी है। ये वो जगह है जहां मैंने एटीएम से अपने पूरे ट्रिप के लिए मनी विड्रॉ किया था और आज का लंच भी मैंने यहीं किया था। ऑक्टनी रियाद के ऊपर ये खूबसूरत गार्डन और कुछ खूबसूरत नक्काशी वाले ग्लोब्स बने हुए हैं। क्यों ये कुछ हमारे दिल्ली के पालिका बाजार की याद दिला रही है ना। यहाँ के कुछ स्टैचूज देखकर बचपन की कहानियों की याद आ जाएंगी। ठीक इसी के एक और फेमस फोर सीजन होटल है जिसकी आर्किटेक्चर बहुत ही खास है और इसके पीछे एक स्टोरी है। अब ये कितनी सही या कितनी गलत है ये तो वक्त ही जानता होगा, बट द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप देख सकते हैं कि 1932 से 38 के दौरान बना हुआ ये होटल का लेफ्ट और राइट के फसाड बिल्कुल ही अलग अलग डिजाइन के हैं और इसके पीछे स्टोरी ये है कि इस होटल के आर्किटेक्ट ने एक ही नक्शे पे दोनों डिजाइन बना के स्टालिन के सामने पेश किया था ताकि वो अपना पसंदीदा डिजाइन चूज कर पाए। बट स्टालिन जी ने किया ये कि नक्शे के बीचों बीच साइन करके अप्रूव कर दिया। अब स्टालिन साहिब को पूछे कौन कि भाई राइट वाला डिजाइन बनाना है कि लेफ्ट वाला। अब जब बिल्ली को घंटी बांधने वाला कोई नहीं मिला तो आर्किटेक्ट ने बीच का रास्ता निकाला और बिल्डिंग नक्शे में जैसे बना था बिल्कुल वैसे का वैसा ही बना दिया विद 2 डिफरेंट फसाड्स। वैसे शायद ये दुनिया का इकलौता इस तरह का एसिमेट्रिकल बिल्डिंग होगा। टूम्ब ऑफ अननोन सोल्जर और फोर सीजन्स के बीच से होते हुए ये रास्ता जाता है टुवर्ड्स रेड स्क्वायर। रेड स्क्वायर या जिसे रशियन में कहते हैं क्रास्नाया प्लोसाड। आइए आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि रेड स्क्वायर का नाम रेड स्क्वायर ही क्यों है। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि रेड स्क्वायर्स नेम हैज नथिंग टू डू विद कम्युनिज्म और सोवियत रशिया। रशियन वर्ड क्रास्नाया मतलब रेड मतलब ब्यूटीफुल वाज द सेम। रेड स्क्वायर मीन्स ब्यूटीफुल स्क्वायर। रेड स्क्वायर के बीचों बीच जब आप खड़े होकर चारों ओर देखते हैं तो ठीक सामने दिखता है रशिया का पहचान, द सेंट बेसिल्स कैथेड्रल। राइट साइड में क्रेमलिन और साथ में लेनिन्स मौसोलियम। और बगल में ही स्टालिन की कब्रगाह, जो पहले तो लेनिन के मौसोलियम के अंदर ही मम्मी बने रह रहा था, बट बाद में बहुत ही बड़े पब्लिक आउटरीच के बाद बाहर निकालकर उन्हें दफना दिया गया। अब आउटरीच क्यों हुआ था यह एक लंबी स्टोरी है, आप गूगल कर लें या अगर जानना चाहते हैं पूरी स्टोरी तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। खैर, फिर अगर आप अपने लेफ्ट की ओर देखते हैं तो देखेंगे द फेमस गम डिपार्टमेंट स्टोर। एंड पीछे मुड़ के देखेंगे तो देखेंगे स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम। सेंट बेसिल्स कैथेड्रल के पीछे है ये बेहद खूबसूरत ज़ारिया डियर पार्क और इसमें है एक अल्ट्रा मॉडर्न कॉन्सर्ट हॉल और एक ऑसम फ्लोटिंग ब्रिज।
और यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू ऑफ वन ऑफ सेवन सिस्टर्स बिल्डिंग्स। यस, दीज आर द व्यूज फ्रॉम द एज ऑफ दिस फ्लोटिंग ब्रिज। यहाँ खत्म होता है हमारा ये टूर और फिर 500 रूबल्स टिप टू गाइड एंड 10 विदानिया टू फेलो ट्रैवलर्स। फिर मैं चला फेमस 50 रूबल्स आइसक्रीम की लज्जत लेने गम डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर। ये एक बेहद खूबसूरत डिपार्टमेंट स्टोर है। इसे मॉल ना कहकर डिपार्टमेंट स्टोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोवियत एरा में इट वाज मेड एंड यूज्ड एज एन स्टेट डिपार्टमेंट स्टोर, जिसकी चकाचौंध से ये 130-140 साल पुराना नहीं लगता। और यहाँ मिलता है द वेरी फेमस सोवियत एरा आइसक्रीम इन डिफरेंट फ्लेवर्स। वैसे वैनिला फ्लेवर यहाँ का बेस्ट कहा जाता है, बट मुझे तो दूसरे फ्लेवर्स भी बहुत अच्छे लगे क्योंकि मैं जितने दिन भी मॉस्को में रहा हर रोज 1 से 2 फ्लेवर जरूर ट्राई किया। कहते हैं ये इसलिए आज भी इतना टेस्टी है क्योंकि आज भी वही 100 से 150 साल पुराना रेसिपी और प्रोसीड्यूर यूज किया जाता है इस आइसक्रीम को बनाने के लिए। और इतना ही नहीं, यहाँ एक हिस्टोरिक टॉयलेट भी है जिसका एक बार का यूजर चार्ज है 200 रूबल्स। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने इसका इस्तेमाल जी नहीं किया यार। 200 रूबल्स बहुत होते हैं 5 रुपए के काम के लिए। फिर निकोलोस्काया स्ट्रीट के जगमगाते लाइट से होते हुए प्लोसाद रेवोल्यूसी मेट्रो लेन लेकर मैं पहुंच गया अपने होटल और कॉल्ड इट ए नाइट। और हमेशा की तरह ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा ताकि आप चैनल से जुड़े रहें और आगे आने वाले एक्साइटिंग रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना के व्लॉग्स अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपका कोई भी सवाल या फीडबैक हो या एक लाइन अप्रिशिएशन का लिखना चाहें तो प्लीज कमेंट बॉक्स जरूर यूज करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सो टिल नेक्स्ट, 10 विदानिया।